Hi everyone. So welcome back to a new video in which I'm going to discuss about game plan for quant reasoning English and GA for phase 1 of RBI grade B. Actually, this video is part of our A to Z series of RBI grade B. I made this video last year also. So as a part of updating these videos, since new exam has happened and a lot of changes, the strategy would change. So we are updating this video as part of our A to Z series. So you can now watch this updated video, that is game plan for QRE and GA, in this A to Z series of RBI Grade B, where we are discussing various aspects of RBI Grade B exam by denoting each important areas through an English alphabet. For example, A for all about RBI Grade B, B for books, C for competition, D for decoded syllabus, and like that. So what would be covered in this video, as I told you, हम पहले game plan discuss करेंगे quant का, then reasoning ka, then English ka, then GA ka. All these four subjects make up your phase 1. So let's start with the quant part. So quant mein there are topics, right, in your syllabus which we have decoded from the previous year papers. Officially there is no syllabus for quant in the notification, but these are the topics that are there on your screen if you decode the previous year papers. आप इसको हमारी तरफ से एक एनालिसिस को मानकर ये एक फाइनल सिलेबस मान सकते हो क्वांट का. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेल यू बी डूइंग ऑल द चैप्टर्स फॉर क्वांट? राइट. नाउ बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, लेट्स लुक एट द कट ऑफ्स. The sectional cutoffs for quant over all these years have been highest at 9, and many of these years the sectional cutoff has had been maximum at 7.5. 2025 में कट ऑफ ज्यादा गई 9, लेकिन पेपर भी आसान था, आपको ये याद रखना होगा. ठीक है. काफी लोग बोलते हैं कि सर सीट्स कम थी इसलिए कट ऑफ ज्यादा गई. सीट्स तो यहाँ पे भी 66 थी जब कट ऑफ 7.5 गया, यहाँ पे तो फिर भी सीट्स 83 थी. राइट. सो if I have to answer this question, let's look at the logic that you get 25 minutes and you get 30 questions in your exam in the quant section. Will you be able to solve 30 questions in 25 minutes? The answer is no. Look at the difficulty level of the paper and then you will realize what I'm trying to tell you. Is it required? Is it required to solve 30 questions in 25 minutes to clear the cutoff? And that is why I explained you the cutoffs before. When the cutoffs are going in a range of say 7.5 to 10, my target score should be 10 to 12. That should be my target score. And if I have to score 12 marks, if I have to score 12 marks, why would I do all the topics? Why would I do all the topics, especially when quant is qualifying in phase 1? I mean, marks of phase 1 are not going to be counted in the final merit list. So I would say do selected topics. You can have these topics in your priority list or any other topic which you feel you are more comfortable in. For example, time and work, time, speed and distance, percentages, ratio, proportion, number series, quadratic equations, profit and loss, interest, and DI. DI is very, very important. There are around 12 to 15 questions from data interpretation alone out of the 30 questions that you get in RBI grade B. Right. So overall, these priority topics should be done first. At a very good level, you should be solving kind of 100, 150 questions per topic of different variety and different difficulty level. Especially from moderate to high, क्योंकि एग्जाम में easy questions नहीं आएंगे. And I think having a target score of 10 to 12 out of 30 is a good score. ठीक है. 12 on a higher side is a very safe score. I would say it's very rare that cutoffs will go past 12 unless and until the paper comes really easy. बाकी जब आप क्वांट के टॉपिक्स करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे, डोंट फॉरगेट to give lot of sectional tests. At the end of the day, it's more about how do you manage your time, how do you select your questions, how do you leave questions if you have not picked the right question. कई बार गलती से हम मुश्किल क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसको कितनी देर में छोड़ना है ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ाई करते हुए नहीं सीखेंगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करना है, गलत क्वेश्चन को कितनी देर में छोड़ देना है. इसके लिए आपको बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, विच इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. बाकी ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए चैप्टर वाइज. 100 to 150 क्वेश्चंस ऑफ मॉडरेट टू हाई लेवल. ठीक है. और वो डिफरेंट टाइप्स के भी होने चाहिए. जैसे टाइम एंड वर्क में आप देखेंगे कम से कम 15-20 टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं टू गेट अ वेरी डाइवर्जेंट
experience of doing different types of questions. और ये क्वांट की कुछ बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं. This quantitative aptitude for CAT, though this is for CAT, but this is equally good for RBI Grade B by Arun Sharma is a very good book. इसमें आप लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चंस कीजिए. फिर DI पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो DI for CAT by Arun Sharma is another good book. ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. If you want to start at a very basic level, ठीक है, मतलब अरुण शर्मा थोड़ी मुश्किल है, थोड़े आसान करना चाहते हो शुरू में, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड for competitive examinations by R.S. Agarwal, Dr. R.S. Agarwal. This is a good book to start with. अदरवाइज ये पहली दो किताबें आप कीजिए. आई थिंक दीज आर गोइंग टू बी सफिशिएंट. बट साथ में सेक्शनल टेस्ट जरूर दे दीजिएगा जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था. और क्वांट में देखिए आप बुक्स वगैरह करेंगे उसमें अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे. मैं सेक्शनल टेस्ट बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं शायद वैसे उस टाइप के फंडामेंटल सेम रहेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट उस टाइप के क्वेश्चन शायद आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जहां टेबल में हमें वेरिएबल्स भी दे रखे हैं, दैट माइट नॉट बी अवेलेबल इन बुक्स, बट ऐसे एग्जाम में रेगुलरली आते हैं. तो अगर आप सेक्शनल टेस्ट देंगे किसी भी अच्छी टेस्ट सीरीज को लेकर तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको एक्सपोजर जरूर मिलेगा. Now coming on to the strategy for reasoning, again there is no official syllabus of reasoning in the notification, but using previous year papers we have decoded this syllabus जिसमें alphabetical series, coding, decoding, syllogism, direction, sense, inequality, ranking, blood relation, sitting arrangement, puzzles, machine input output, statement assumption, statement course of action, cause and effect, statement argument, statement conclusion, data sufficiency. ये एक बड़ा सेट ऑफ सिलेबस है जो आपको करना है. बट क्या आपको सारे चैप्टर्स करने चाहिए? देखिए अगर टाइम है तो सारे कीजिए, बट अगेन व्हाट इज द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि सारे चैप्टर्स को सुपरफिशियल लेवल करके कोई फायदा नहीं है. उससे आपकी एक बहुत ही बेसिक लेवल की तैयारी होगी जो एग्जाम में काम नहीं आएगी. तो रीजनिंग में भी अगर आप देखेंगे यू गेट 45 मिनट्स एंड यू गेट 60 क्वेश्चंस. कैन यू सॉल्व 60 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स? द आंसर इज नो. क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होते हैं भाई, पजल तो काफी अच्छे आते हैं कहीं. Is it required to solve 60 questions in the examination? Again, let's try to analyze the cutoffs. In 2025, the cutoff, though it was at a higher level, then also it was 18. It was not like 25 or 30. And maximum number of years, you would say that the cutoff has been highest at 15. 18 में कट ऑफ, सॉरी 25 में कट ऑफ 18 जरूर गई है, बट उसके पीछे एक रीजन भी था कि पेपर रिलेटिवली इजी था एज कंपेयर टू अदर ईयर्स. तो इजी पेपर आने पे देखिए कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट वी कांट इमेजिन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम सो इजी के कट ऑफ 30, 35, 40 तक चला जाए. सो इवेंचुअली माई टारगेट स्कोर आई थिंक of 20 to 25 shall be a good score. And to achieve this target score, why would I do 100% of the syllabus? I can be selective क्योंकि एग्जाम में मैं सारे क्वेश्चंस तो पढ़ नहीं पाऊंगा 45 मिनट्स में. सो वट एवर टॉपिक्स आई सेलेक्ट आई ट्राई टू पिक क्वेश्चंस फ्रॉम दोज टॉपिक्स. तो मैं यहाँ पे जनरली प्रायोरिटी डिफाइन करता हूँ. एग्जाम में आपका अराउंड 30 मार्क्स का इन टॉपिक्स में से आएगा, 30 मार्क्स का पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आता है. कभी कभी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट 35 तक भी जा सकता है. बट पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट कैन बी वेरी रिस्की इन द एग्जामिनेशन इफ यू स्टार्ट विद देम. कई बार होता है कि आप 5, 10, 15 मिनट पजल पे लगा चुके हो और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, एंड दोज लॉस्ट 15 मिनट्स विल नॉट कॉस्ट यू टाइम बट इट विल कॉस्ट यू मेंटल एग्नी ऑल्सो. तो जर्नली आई प्रेफर कि आप जो अदर टॉपिक्स हैं अपार्ट फ्रॉम पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, आप पहले उनकी प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम में भी पहले उनको अटेम्प्ट कीजिए. तो ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, इनइक्वालिटी, प्लस क्रिटिकल रीजनिंग जो होती है, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट. ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग एक सेट ऑफ टॉपिक्स है, आप उसको जरूर कर लीजिए. वहां से भी आपको 8-10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. तो पहले आप इसको कीजिए, फिर प्रिपरेशन में इसको कीजिए, एग्जाम में भी पहले आप इनके क्वेश्चन उठाइए, फिर टाइम मिलता है तो आप इनके क्वेश्चन उठाइए. ओवरऑल आई थिंक रीजनिंग का जो लेवल एग्जाम में देखने को मिलता है, अ टारगेट स्कोर ऑफ 20 to 25 आउट ऑफ 60 shall be a good score unless and until the paper comes really easy. ठीक है, ज्यादा आपको बहुत एम्बिशियस होने की जरूरत नहीं है कि मैं 35 या 40 का टारगेट अचीव करूंगा. और की पॉइंट्स इसमें भी यही हैं कि पढ़ाई कर लेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सेलेक्ट करते हैं, गलत क्वेश्चंस को कितनी देर में छोड़ते हैं, ये आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिए और पर चैप्टर अगेन 100 टू 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए ऑफ डिफरेंट वैरायटी एंड डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल। द सेम थिंग आई टोल्ड यू इन क्वांट। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वांट एंड रीजनिंग। ये किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। आर एस अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, फॉर रीजनिंग। बाकी एक लॉजिकल रीजनिंग की कैट की किताब आती है अगेन बाय अरुण शर्मा, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये दो किताबें आई थिंक विल गिव यू गुड एक्सपोजर फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन। फिर एक बुक मैंने आपको क्वांट के लिए बताई थी, ये मैंने रीजनिंग में इसलिए ऐड की है क्योंकि एक इनइक्वालिटी टॉपिक है आपका रीजनिंग में, वो काफ़ी रीजनिंग के बुक्स में ना होकर क्वांट की बुक में आपको मिलेगा, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। तो रीजनिंग में भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको शायद बुक्स में नहीं मिलेंगे। जैसे पिछले साल या उससे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था ऑन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग पे था। जनरली ये बताया जाता है कि 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 6 लोग हैं, बट पजल क्या था, सर्टन नंबर ऑफ पर्सन्स, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स ही नहीं बताए गए थे। सो जो पजल का एक लहजा होता है, एक अप्रोच होती है, वही चेंज हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगेन आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे जहां से आप एग्जाम टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। इंग्लिश की बात करें, देखिए इंग्लिश आई ऑल्सो डोंट नो हाउ टू रीड इट बिकॉज आई एम नॉट गुड एट इट, बट आई नो वन थिंग कि इंग्लिश इज ग्रामर बेस्ड और ग्रामर को इम्प्रूव करना कम टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप पूछें कि सर 3 महीने में, 4 महीने में क्या मैं ग्रामर इम्प्रूव कर सकता हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़कर तो नहीं, बट रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू जहाँ आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस, आप इंग्लिश ग्रामर ज़रूर थोड़ी बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पढ़ना तो आपको ग्रामर है, मतलब समझना है जो आपको आनी चाहिए, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस एंड ऑल दैट। बट एग्जाम में आपको डायरेक्टली कुछ रूल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट एप्लीकेशन आएगी। जैसे एरर स्पॉटिंग आ गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट। तो ग्रामर आनी एक चीज है, उसको अप्लाई करना अलग चीज है। अगर आप अप्लाई करना सीख गए, भले ही आपको ग्रामर के एग्जैक्ट रूल्स नहीं पता है, आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर बारी आती है कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी की, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी इज एबिलिटी टू रीड समथिंग एंड कॉम्प्रिहेंड। तो वो अगर आपकी अच्छी है, आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और पैराजम्बल्स टाइप क्वेश्चंस कर लेंगे। डबल फिलर्स भी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे बेस्ड होते हैं। फिर कुछ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिनोनिम्स, इंटरनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आपको ग्रामर पे काम करना है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे काम करना है और अपनी वोकैबुलरी पे काम करना है। इन 3 स्किल्स को यूज कर कर अप्लाई कर कर आप इंग्लिश के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो मोटा मोटा ये आपका एक तरह से सिलेबस हो गया। बाकी जैसा मैंने बताया, ग्रामर सीखने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं आएगी, रेन एंड मार्टिन नहीं समझ पाओगे। तो बेस्ट है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दो, सेक्शनल टेस्ट दो और देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, अच्छे से नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं, देखो उनमें क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप एक रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच अपनाएंगे, आई एम श्योर कि आप धीरे धीरे इंग्लिश में जो आपका स्कोर है, अगर 30 में से 10 आ रहा है तो आप शायद उसको 15 ले जाएंगे, 15 आ रहा है तो 20 ले जाएंगे। बट इंग्लिश की अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो बुक्स में रेन एंड मार्टिन बेस्ट है, बट मैं नहीं रिकमेंड करता, ये स्कूल लेवल पे जिसने पढ़ ली। फिर ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश आती है एसपी बख्शी की, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक वर्ड पार मेड इजी आती है नॉर्मन लुइस की, ये भी आप पढ़ सकते हैं फॉर योर वोकैबलरी। ये थर्ड बुक है जो वोकैबलरी के लिए है। और सेकेंड बुक आप जर्नली कुछ क्वेश्चंस या एरियाज जो एग्जाम में आते हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आते हैं अगेन जो आपको शायद ग्रामर वाली बुक्स में तो नहीं मिलेंगे, कि जैसे आपको इधर कॉलम ए और कॉलम 2 में कुछ दिया है, आपको मैच करना है कि ए एफ के साथ मिलेगा, बी डी के साथ मिलेगा, ई के साथ मिलेगा, ठीक है। तो अगेन दिस इज अगेन बेस्ड ऑन कि आपकी कैसी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है और किस तरह से आप चीज़ों को जोड़ सकते हो। लास्ट इज अबाउट जर्नल अवेयरनेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन वर्थ 80 मार्क्स एंड कैन बी द मोस्ट स्कोरिंग ऑल्सो, but it has its own challenges के current affairs are very vast, they're very factual, and truly speaking the complete coverage of current affairs is impossible. You cannot ever feel that I am fully prepared for current affairs. There would always be something missing which you will not remember.
तो सबसे पहले अगर मैं करंट अफेयर्स में मतलब जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है उसमें एरियाज डिस्कस करूं जो आपके एग्जाम में आते रहे हैं, तो ये एरियाज हैं जो मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं। और मैंने वेटेज भी लिस्ट किया है 2024 का भी और 2025 का भी। जैसे स्कीम्स का वेटेज 2024 में 8 से 10 मार्क था, बट 2025 में सिर्फ 1 मार्क रह गया। इससे लर्निंग ये है कि वेटेज फिक्स नहीं है, एरियाज फिक्स हैं बट वेटेज फिक्स नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का वेटेज देखकर एज्यूम करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, विच is true if the trend prevails, which is not true if the trend changes. And many a times I've seen the trend changing. तो ये बहुत बड़ी गलती है जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस को देखकर ये एज्यूम करते हैं कि बस यही करना है, यही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम में आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक चांस मिलता है एक साल में। और अगर हम बस प्रीवियस ईयर्स को देख के ही तैयारी करें और पेपर का ट्रेंड चेंज हो जाए तो हम वो पूरा साल लॉस्ट कर देंगे। रिपोर्ट्स जैसे 24 में 12 से 15 मार्क्स की आई थी, यहाँ पे सिर्फ 7 मार्क्स की आई हैं। आरबीआई नोटिफिकेशंस में ड्रास्टिक चेंज है, यहाँ पे 20 नंबर की आई थी, 24 में 25 में सिर्फ 8 नंबर की आई हैं। आरबीआई नोटिफिकेशंस इज वन सच एरिया जिसको लोग बहुत पढ़ के गए थे कि यहाँ से पेपर आएगा, बट नहीं आया। फाइनेंस करंट अफेयर्स 8 से 10 नंबर के आए थे, ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं 24 और 25 में। फिर एआरडी एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पूछे गए, क्योंकि एग्रीकल्चर आपके कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है। तो पहले तो नहीं पूछे जाते थे, बट एक दो क्वेश्चन अब यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। ईएसआई करंट अफेयर्स का वेटेज पहले 8 से 10 था, इस साल बढ़ा है। ठीक है, स्कीम्स कम हो गई, स्कीम्स कम हुई, बट ये प्लस हो गया। फिर जो मिसलेनियस करंट अफेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ऑबचुरीज, डिफेंस एंड ऑल, वो 15 से 18 नंबर के आते थे, उनका वेटेज हर साल गिर रहा था। बट इस साल देखिए ऑलमोस्ट, अगर 15 से देखें तो 1.8 के करीब हो गया है। बहुत बड़ा प्लस आया। और ये एरिया जनरली मैं खुद बोलता था कि इसको ज़्यादा मत करो क्योंकि इसका वेटेज कम हो रहा है। फिर स्टैटिक जी है जिसमें पार्क्स, कंट्रीज, कैपिटल्स, माउंटेन्स पे क्वेश्चंस आते थे, वो पहले नहीं आते थे। इस साल 8 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, बहुत बड़ा चेंज है ये। फाइनेंस स्टैटिक, यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चंस आते थे, इस साल भी 7 आए हैं, तो ज़्यादा चेंज नहीं। सीधी पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि ये वेटेजेस फिक्स नहीं है, एरियाज फिक्स हैं। और अगर आप वेटेजेस को कुछ एज्यूम कर कर चलोगे कि ये वेटेज इसमें आएगी, ये इंपॉर्टेंट है, और वेटेज चेंज हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये तो और ही पेपर आ गया, मुश्किल था, आपने तो ऐसा बोला था। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ दैट यू डू ऑल दीज एरियाज irrespective of what is their weightage and think that any area can have a higher or lower weightage in the exam. That's it. ठीक है, और इनके अगर सोर्सेज की बात करें, स्कीम्स आप पीआईबी वेबसाइट से कर सकते हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वेबसाइट। रिपोर्ट्स के लिए आप पीआईबी वेबसाइट और हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, आरबीआई नोटिफिकेशंस आरबीआई वेबसाइट से कीजिए। फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए आप बिजनेस स्टैंडर्ड या लाइव मिंट न्यूज़पेपर, बिजनेस स्टैंडर्ड ज़्यादा प्रेफरेबल है। एआरडी करंट अफेयर्स के लिए आई डोंट नो, मे बी जागरण, कृषि जागरण पढ़ सकते हैं। ठीक है, ईएसआई करंट अफेयर्स के लिए दी हिंदू न्यूज़पेपर, ये मैं ऊपर लिस्ट कर चुका हूँ। मिसलेनियस करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ऑब्जरीज वगैरह के लिए दी हिंदू न्यूज़पेपर अगेन। स्टैटिक जीए रैंडम आती है जिसमें माउंटेन्स, रिवर्स, स्टेट्स, कैपिटल्स, इसके लिए आई कैन नॉट टेल यू अ सोर्स, आई थिंक, एंड इट्स वेरी वास्ट, इट्स नॉट वर्थ कवरिंग हेयर। फाइनेंस स्टैटिक अगर आप अपना फेज टू सिलेबस कर लेंगे आपका वहां से हो जाएगा, तो द डे यू कवर योर फेज टू सिलेबस, ये फाइनेंस स्टैटिक के 5-7 क्वेश्चंस आप एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एरियाज हैं और सोर्सेज हैं। अब अगर मैं सोर्सेज वाइज देखूं कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो ट्रेडिशनली आई हैव बीन ऑलवेज सेइंग कि पीआईबी और बिजनेस स्टैंडर्ड यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन स्ट्राइक करते हैं। तो अगर आप इन दो सोर्सेज को अच्छे से कर लेंगे, साथ में आरबीआई वेबसाइट, क्योंकि आरबीआई नोटिफिकेशन सारी आरबीआई वेबसाइट से आती है, इस बार उनका वेटेज कम था, तो आरबीआई वेबसाइट से आप सिर्फ 6-7 क्वेश्चन ही देख रहे हैं, नहीं तो ये 18 से 20 रहते हैं। ठीक है, बाकी हिंदू न्यूज़पेपर, तो आपके 80 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 15 तो आपके स्टैटिक थे। ठीक है, अब ये तो मुझे किसी न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगे, तो मेरे कुल रह गए 65, और 9 का मुझे सोर्स ही नहीं पता लग रहा है। ठीक है, कि सोर्स क्या है, तो मेरे रह गए 54। अब 54 में से अगर आप देखोगे
20 प्लस 18 38 प्लस 60 प्लस 44 प्लस 49। 49 मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो मेरी ये चार सोर्सेज से आए हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड, पीआईबी, आरबीआई वेबसाइट, हिंदू। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इन चार सोर्सेज को अच्छे से पढ़ो। एग्जाम में 60 65 70% क्वेश्चंस आपको इन चार सोर्सेज से स्ट्राइक कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड हिट। सारे सोर्सेज तो आप वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे। बाकी इन सोर्सेज को खुद से पढ़ना कैन बी रियली चैलेंजिंग, बिकॉज आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। सो यू कैन यूज़ कंपाइल्ड मैगजीन्स बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स जो इन सारे वेबसाइट्स को जाकर स्कैन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, कंपाइल करते हैं। एडुटैब भी काफ़ी मैगजीन्स देता है। स्कीम्स के लिए स्कीम्स टैब है, रिपोर्ट्स के लिए रिपोर्ट्स टैब है, आरबीआई नोटिफिकेशंस की आरबीआई न्यूज़ टैब है, फिर फाइनेंस करंट अफेयर्स, ईएसआई करंट अफेयर्स और नॉर्मल करंट अफेयर्स के लिए करंट टैब है। ठीक है। और फाइनेंस स्टैटिक आपका फेज टू सिलेबस से हो जाता है, स्टैटिक जीए वी डोंट कवर। ठीक है, इट्स वेरी रैंडम। तो मोस्ट ऑफ द एरियाज वुड गेट कवर्ड थ्रू वेरियस कंपाइलेशंस दैट वी गिव इन आवर कोर्स। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कर सकते हैं। द ओनली चैलेंज वुड बी टाइम। टाइम आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए। अब करंट अफेयर्स कितने महीने के करने चाहिए? ठीक है, ये एरियाज हैं। सोर्सेज हमने देख लिए कौन से बेस्ट रहते हैं। Now, what is the number of months of current affairs that I shall be doing? So I normally recommend 3/5 rule of current affairs here. मतलब 5 months of current affairs is something that I would ideally prefer, but then there are people who are very busy, lazy, married, working, whatever their reason is, they cannot do 5 months of current affairs. Then the last resort is you do 3 months of current affairs. But ideally it has to be 5 months of current affairs. तो अगर मैं आपको 2025 का डेटा एनालाइज करके बताऊं, इमीडिएटली प्रोसीडिंग जो लास्ट मंथ था एग्जाम से पहले, उसमें से 23 क्वेश्चंस आए। सेकंड मंथ प्रोसीडिंग द एग्जाम 6, थर्ड मंथ प्रोसीडिंग द एग्जाम 8, फोर्थ मंथ प्रोसीडिंग द एग्जाम 4 और फिफ्थ मंथ प्रोसीडिंग द एग्जाम 5। टोटल कितने हो गए? 29, 37, 41, 45। सो 5 महीने में से 5 months preceding your exam you got 45 questions. Another 15 was static. These are not related to current affairs. ठीक है। तो 80 में से मेरे 15 क्वेश्चन स्टैटिक थे, मतलब रिमेनिंग 65 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दैट 45 क्वेश्चंस आई गेट फ्रॉम प्रीसीडिंग 5 मंथ्स। मतलब मेरा 70 to 75% क्वेश्चंस आई एम गेटिंग फ्रॉम प्रीसीडिंग 5 मंथ्स। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 6 to 12 मंथ से भी आए हैं, 12 क्वेश्चंस, बट इन 12 क्वेश्चंस के लिए मैं पूरे साल के करंट अफेयर्स तो नहीं पढ़ूंगा। दैट वुड नॉट बी वैल्यू फॉर माई एफर्ट। सो आप 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स करो। लास्ट रिजॉर्ट इज 3 मंथ्स। आई डोंट रिकमेंड दैट, बट जो लोग कर ही नहीं पाएंगे उनके लिए लास्ट रिजॉर्ट है। अब स्कीम्स में क्या पूछा जाता है? स्कीम्स में वही स्कीम्स पूछी जाती हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जो आपका फेज 2 का सिलेबस है। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे स्कीम्स पूछी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। विमेन गर्ल्स पे स्कीम्स पूछी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जेंडर इश्यूज आपके सिलेबस का पार्ट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन आपके एफएम के सिलेबस का पार्ट है। माइग्रेशन अर्बनाइजेशन पे स्कीम्स पूछी जा रही हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। सो जर्नली जो भी स्कीम्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आपके फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। और ये स्कीम्स एग्जाम से लास्ट 5 मंथ्स पहले तक न्यूज़ में होती हैं कहीं ना कहीं। न्यूज़ में होने का मतलब है या तो वो नई लॉन्च की जाती हैं, या उनमें कुछ अपडेट किया जाता है, या कोई कंट्रोवर्सी होती है। फॉर वॉट एवर रीजन दे आर इन न्यूज़ इन द प्रीसीडिंग 5 मंथ्स बिफोर योर एग्जाम, एंड वेयर दे आर ऑन न्यूज़ ऑन अ वेबसाइट बाय द नेम पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे मिनिस्ट्रीज अपनी इनपुट्स देती हैं कि वो क्या क्या इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो भी स्कीम न्यूज़ में आ गई एग्जाम से 5 मंथ्स प्रीसीडिंग, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो हमें सारी स्कीम्स नहीं पढ़नी है, अपने सिलेबस से रिलेटेड पढ़नी है, जो एग्जाम से 5 मंथ्स प्रीसीडिंग तक कहीं ना कहीं न्यूज़ में हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वेबसाइट पर। रिपोर्ट्स में 8 रिपोर्ट्स जो है इंडिविजुअल रिपोर्ट्स वो इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, एनी टाइम इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट अगेन आरबीआई की है। फिर आरबीआई की एक करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट आती है। फिर आरबीआई की एक ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट आती है। फिर एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है बाय वर्ल्ड बैंक,
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय आईएमएफ। ये 8 इंडिविजुअल रिपोर्ट्स हैं जो आपको करनी है। उसके अलावा वो रिपोर्ट्स जो आपके फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड हैं, ठीक है, और एग्जाम से 5 मंथ्स प्रोसीडिंग रिलीज हुई हैं, वो हमें करनी है। तो जैसे अगर जेंडर इक्वालिटी पे रिपोर्ट आती है विच इज विद इन 5 मंथ्स प्रोसीडिंग माई एग्जाम, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेंडर इश्यूज मेरे सिलेबस में है। अगर पॉवर्टी पे कोई रिपोर्ट आती है विद इन 5 मंथ्स प्रोसीडिंग माई एग्जाम, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पॉवर्टी इज इन माई सिलेबस। सो अपार्ट फ्रॉम दीज 8 रिपोर्ट्स, any report which is related to my phase 2 syllabus and is released within 5 months preceding the exam, that is important for my exam, ठीक है। And for the ninth point, first 8 are individual reports, no question asked. For the ninth point, I will not any random report. Suppose there is an organization ABC which releases gender equality report 5 months preceding, within 5 months preceding my exam. Will I read it? The answer is no. ABC is not a branded entity. I will only read reports which are related to my syllabus. They are released within 5 months preceding my exam, and they are released by important branded organizations like World Bank, United Nations, UNICEF, WTO, OECD, ADB, Asian Development Bank, World Economic Forum, IMF, NSO, नीति आयोग, सेबी, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं की रिपोर्ट्स मुझे पढ़नी है जो मेरे सिलेबस से रिलेटेड हैं और एग्जाम से विद इन 5 मंथ्स टाइमलाइन में वो रिलीज हुई हैं, ठीक है। और ये देख लो लास्ट ईयर 2025 के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। एक ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे था जो एनएसओ ने कंडक्ट किया था। एनएसओ इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक सर्वे पे क्वेश्चन आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था जिसको यूनाइटेड नेशंस की एक सब एंटिटी रिलीज करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था जिसको यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस रिलीज करता है। सो मोस्ट ऑफ द एंटिटीज हुज रिपोर्ट्स आर बीइंग आस्क्ड हियर आर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेचर, ऐसे कोई रैंडम ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ठीक है। तो हमें इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट पढ़नी है जो मेरे सिलेबस से रिलेटेड हो एंड दे आर रिलीज विद इन 5 मंथ्स ऑफ माई एग्जामिनेशन। बाकी आरबीआई notifications are RBI regulations which are asked in your examination. They can be read from the RBI website. Questions are generally factual. If I show you the questions, ठीक है, what is the minimum limit for bulk deposit for local area banks, ये नंबर पता होना चाहिए आपको, that's it, ठीक है। अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड ombudsman scheme, ombudsman can be appointed for how many years at a time, maximum period, again numbers. So if you remember the numbers from these regulations, you're good to go. The regulations can be technical, but what you need to do is just remember the numbers. That's it. ज़्यादातर numbers पे ही questions आते हैं। Finance current affairs में either they will ask you questions related to regulations or development by SEBI, IRDAI और PFRDA. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके डेवलपमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपके फेज 2 के टॉपिक से रिलेटेड जैसे डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिनटेक, इनसे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होती है, क्योंकि ये आपके फेज 2 के टॉपिक्स हैं, फेज 2 के सिलेबस में है, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारे फेज 2 के टॉपिक्स हैं। फिनटेक, फिनटेक कहाँ है भाई, फिनटेक कहाँ गया, फिनटेक भी है, आई एम नॉट एबल टू ट्रैक इट राइट नाउ, ठीक है। आई थिंक रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग इज फिनटेक ओनली। तो ये फेज 2 के जितने भी टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स अगर आता है नियर अबाउट योर एग्जाम विद इन 5 मंथ्स ऑफ योर एग्जाम, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये फिनटेक पे क्वेश्चन आया है क्योंकि फिनटेक आपके सिलेबस में था यूपीआई पे, ये सेबी की डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से इन एरियाज पे हमें काम करना है, या तो सेबी, इरडाई, पीएफआरडीए पे, या मेरे फेज 2 के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स पे कोई क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट होती है तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। एआरडी करंट अफेयर में से बहुत लिमिटेड वेटेज रहता है, एंड एआरडी करंट अफेयर्स आर रियली वास्ट, देयर आर सो मेनी रिपोर्ट्स अपार्ट फ्रॉम रेगुलर करंट अफेयर्स। तो आप इसको एट रैंडम पढ़िए, आई डोंट नो, छोड़िए, दैट इज योर कॉल।
But if you're only preparing for RBI, I think it would be too much asking you to invest time in ARD current affairs. Better to leave them, I would say. ESI current affairs में either they will ask you some GDP numbers or repo rate settings or inflation numbers, या फिर आपके जो फेज 2 के टॉपिक्स हैं ESI के सिलेबस में, सच एज रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, मॉनेटरी पॉलिसी, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, और भी जो टॉपिक्स हैं, है ना, जैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज यहाँ पे है, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन आपका यहाँ पे है. Any topic which is in your syllabus and there is any development related to that topic, that can be asked under ESI current affairs. जैसे ये क्वेश्चन आया है, which of the following banks are members of partnerships for carbon accounting financials, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, ये वाला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे है. ठीक है, FTAs एंड ऑल, ये वाले टॉपिक से रिलेटेड है. सो करंट अफेयर्स अगेन, दोज विच आर रिलेटेड टू योर फेज टू टॉपिक्स एंड आर एक्चुअली डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 months ऑफ योर एग्जाम. टाइमलाइन वही 5 महीने है हर जगह, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है. बाकी मिसलेनियस करंट अफेयर्स, जिसको मैं नॉर्मल करंट अफेयर्स भी बोलता हूँ, जिसमें नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, फर्स्ट इन न्यूज़ पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. कोई चीज़ जब पहली बार होती है, कोई पहली बार रेलवे ब्रिज बना है, कोई पहली बार पार्क सेटअप हुआ है, उस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. डिफेंस रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेज इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़, स्पोर्ट्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एनवायरनमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स. तो इन सारे एरियाज पे आपको क्वेश्चंस आएंगे. इसमें वेटेज भी इसका 2025 में अच्छा खासा था, हालांकि पहले इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं होता था, बट 2025 का वेटेज देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन गया है. इसमें क्वेश्चन या तो बिल्कुल डायरेक्ट आएगा, दैट विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है. और फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, तो ये बेसिकली फर्स्ट इन न्यूज वाली कैटेगरी है. काफी क्वेश्चन इनडायरेक्ट आते हैं. दैट पुलिट्जर प्राइज established in 1917 is among the world's most prestigious honors in journalism. Who was the first Indian recipient of this award, winning it in 1937? तो एक्चुअली करंट अफेयर क्या है कि 2025 या 2024 जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया, उस ईयर में पुलिट्जर प्राइज दिए गए थे, तो हम उस ईयर के पुलिट्जर प्राइज ऐड करेंगे कि इस साल किसको दिया गया, कौन जीता. बट क्वेश्चन इनडायरेक्ट आ गया कि फर्स्ट इंडियन 1937 में जिसको ये अवार्ड मिला था वो कौन है. तो ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो हमारे करंट अफेयर्स में डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, बट वो खुद से करंट अफेयर्स नहीं होते हैं. तो इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमें प्रिपेयर करने हैं. बाकी स्टैटिक जी इज वेरी रैंडम, दे कैन आस्क यू अबाउट रिवर्स, माउंटेन्स, डैम्स, कंट्री साइजेस, कैपिटल्स, questions on important organizations like CSIR, ISRO. This can be very random, I can tell you. You cannot prepare for this. For example, ये country sizes पे question पूछ लिया है, ये CSIR पे पूछा है कि उसका एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होता है. ठीक है, ये माउंटेन पीक्स पे क्वेश्चन पूछ लिया है. आई थिंक टू हैव दिस लेवल ऑफ ज्योग्राफी, आई मीन ओनली यूपीएससी एस्पिरेंट जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा शायद वही कर पाएगा, बाकी लोग तो नहीं कर पाएंगे. So again, this is the area which seems to have a good weightage, but this is very difficult to master, I would say, just for RBI. If you have done this as part of your other exam, maybe you can do it. But to do it as a part of RBI only by reading it for the first time can be really, really challenging. Baki finance static mein they will ask you some basic concepts related to banking, derivatives, inflation, all that which is part of your phase 2 syllabus. ठीक है, तो आपके फेज 2 में जितने भी टॉपिक्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, इन सब से वो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछ सकते हैं. सो इफ़ यू वुड हैव प्रिपेयर्ड योर फेज 2 सिलेबस बाय द टाइम यू सिट इन फेज 1, ये पोर्शन आपका उसी से कवर हो जाएगा. इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है. जैसे कि ये क्वेश्चन आया था, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई. तो अगर आपने प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स पढ़ा है, इन्फ्लेशन पढ़ा है, तो आप ये आराम से कर सकते हो. बेसल थर्ड नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग.
कहाँ पे वो एप्लीकेबल हैं, कहाँ पे नहीं है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा है, बेसल 3 नॉर्म्स पढ़े हैं, तो आप ये आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा पैटर्न है, ये एरियाज हैं। वेटेज मैं बोल ही चुका हूँ, वेटेज को आप ज़्यादा डिटेल में मत लीजिए, इट कैन चेंज अकॉर्डिंगली, वट एवर कैन हैपन। ना द पॉइंट इज कि काफ़ी लोग जो बैंकिंग और एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको देख के लगता है कि यार करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स हैं, हम बैंकिंग और एसएससी वाले पढ़ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, आरबीआई नोटिफिकेशंस अच्छे खासे आ सकते हैं एग्जाम में। फिर रिपोर्ट्स और स्कीम्स का वेटेज इस साल कभी कम रहा है, बट ये अच्छा भी आ सकता है। ठीक है, बाकी फाइनेंस करंट अफेयर, ईएसआई करंट अफेयर, ये लोग भी बैंकिंग और एसएससी वाले ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। बैंकिंग और एसएससी वाले ये पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, डिफेंस एंड ऑल, स्टैटिक जीए पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, बट इन इटसेल्फ दिस इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर यू टू स्कोर गुड इन आरबीआई, बिकॉज देयर आर मेनी अदर एरियाज जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड दे आर नॉट मच प्रिपेयर्ड फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो आप बैंकिंग और एसएससी वाले करंट अफेयर्स पे रिलाई मत करें, आरबीआई स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पढ़ें। इस चीज़ का ध्यान रखें, और आरबीआई स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आरबीआई के लिए ही पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए की पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि इसको कैसे कवर करना है, क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। ठीक है, तो ये वीडियो था हमारा गेम प्लान पे, हमने पहले भी बनाया है, इसको हमने आज अपडेट किया है एज पर द रीसेंट एग्जाम। दिस वीडियो इज आर पार्ट ऑफ ए टू जेड सीरीज। अगर आप पूरी ए टू जेड सीरीज देखना चाहते हैं आरबीआई ग्रेड बी की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर ये पूरी आरबीआई ग्रेड बी प्लेलिस्ट A to Z देख सकते हैं, and you can enhance your knowledge, enhance your confidence, and get motivated to prepare for RBI Grade B. So thank you. Have a nice day.